All right, good morning, students. Today we're going to continue with History Chapter 9, Part 5. Our objective for today is students will be able to take notes on the benefits and types of encyclopedias. All right, encyclopedias ये एक book है. I will explain a little more about what that book is all about. But what are you taking notes on? आज तुम किस चीज़ पे notes लेने वाले हो? Benefits यानी क्या क्या अच्छाइयाँ होती है encyclopedias का, क्या क्या functions होते हैं, and what are the types, different types of encyclopedias available to us right now. Right? So students, keep your pens and notebooks ready. These are the two things that you are going to be learning today. Remember, wait, first listen to my explanation of the slide and then you pause the video and then you take notes. All right. So the first thing we're learning is definition and benefits of an encyclopedia. Encyclopedia होता क्या है, उसके क्या क्या functions है, what are the benefits of using an encyclopedia, ये सब चीज़ें I will be telling you today. And types of encyclopedias, कौन से अलग अलग टाइप के encyclopedias available है इंडिया में, that's what we're going to look at. Alright, so let's move on to the first topic. Let's look at the definition first. Abhi, first point, an encyclopedia is a systematic collection of information on various topics. Systematic का मतलब है कि वो एक particular system में arrange किए गए हैं. Alright, then second point, the information in it is arranged in a specific method. Specific यानी एक किसी particular method में, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड में उसको अरेंज किया गया है उस इंफॉर्मेशन को. ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, encyclopedias मेक अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द रीडर. ऑलराइट, किसी भी रीडर को, किसी भी पढ़ने वाले को जब वो encyclopedia पढ़ रहा है वो उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाता है. ऑलराइट, फोर्थ, it motivates readers to read more about the topics by giving them basic information about it. कुछ encyclopedias क्या करते हैं, सिर्फ basic information देते हैं एंड उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर वो अलग अलग साइट्स देते हैं, अलग अलग किताबों का रेफरेंस देते हैं, बोलते हैं कि अच्छा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में और पढ़ने के लिए तुम्हें ये बुक पढ़ना पड़ेगा, ये मूवी देखनी पड़ेगी, ऐसा वैसा बोलेंगे. एंड देन द रीडर विल गेट मोटिवेटेड कि अच्छा मुझे इस इंसाइक्लोपीडिया से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब मैं जाके इसके बारे में और पढ़ूंगा आगे बाकी के बुक्स या बाकी के मूवीज को पढ़ के. राइट, सो दैट्स द फोर्थ फंक्शन. फिफ्थ, इट ऑल्सो हेल्प्स रिसर्चर्स to find out more knowledge that isn't fully detailed yet. Alright, sure. So researchers को क्या पता चल जाता है, रिसर्चर्स को ये मिल जाता है, यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनको किसी एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है या किसी एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना है, वो पहले इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ेंगे और देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक पे कितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी. अगर ज़्यादा नहीं है तो वो रिसर्च पे आगे बढ़ सकते हैं. अगर पहले से ज़्यादा है और सब कुछ पता चल चुका है तो रिसर्चर्स का उस बारे में पढ़ना कुछ मतलब का नहीं बनता. करेक्ट, सो इट हेल्प्स रिसर्चर्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट नॉलेज दैट इजंट फुल्ली डिटेल्ड है. जो भी नॉलेज फुल्ली डिटेल्ड नहीं है उसके बारे में हमें इंसाइक्लोपीडियाज के थ्रू पता चल सकता है. एंड फाइनली they inform us about the cultural development of a society. Encyclopedias, what they do is they tell us कि किसी society का culture उस समय पे कैसा है. For example, right now we have a lot of encyclopedias on technology and a lot of information on plants, animals, etc. तो जिस भी डेट पे वो encyclopedia पब्लिश हुआ या जिस भी डेट पे वो encyclopedia बना है, we can find out कि उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय के लोग कैसे बिहेव करते थे, उनको क्या क्या नॉलेज इम्पॉर्टेंट था, उनके लिए क्या क्या नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये सब हमें इंसाइक्लोपीडिया से पता चल जाता है. ऑलराइट, सो दिस स्टूडेंट्स इज द डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ encyclopedia. You may now pause the video and write down all the notes given here. The next topic is types of encyclopedias. Alright, now there are four major types of encyclopedias we'll be looking at today. First one is dictionaries. Now what is the dictionary? A dictionary is arrange the word of a language in alphabetical order. डिक्शनरीज क्या है, बुक्स होता है. वी ऑलरेडी नो व्हाट अ डिक्शनरी इज, विच अरेंज द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए टू जेड. अ से जो भी लास्ट वर्ड है हिंदी में, आई पर्सनली डोंट रिमेंबर इट एनीमोर. एंड कोई भी लैंग्वेज में उसके स्टार्टिंग वर्ड से एंडिंग वर्ड तक, ऑलराइट, सारे के सारे जितने भी वर्ड्स है उस लैंग्वेज में उसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. दैट इज अ डिक्शनरी. व्हाट इज इट्स फंक्शन? It gives us meanings of words and etymology. Etymology of words का मतलब क्या है? Etymology मतलब ये word आया कहाँ से, ऑलरेडी ये word कहाँ से शुरू हुआ, किसी दूसरे लैंग्वेज से आया कि अपने ही लैंग्वेज से बना हुआ है ये word. So etymology is the origin, यानी the starting point. Etymology का मतलब है starting point.
Now, there are various types of dictionaries, including comprehensive dictionaries, dictionaries on particular knowledge, etc. Alright. So in the first picture, students, you can see that there are different languages और सारे अलग अलग languages के dictionaries है वहाँ पे. Alright. And there are various types of it. कुछ डिक्शनरी सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के वर्ड्स के बारे में बताते हैं, कुछ डिक्शनरी सारे के सारे वर्ड्स के बारे में बताते हैं. ऑलराइट. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज एंड डिक्शनरीज आर वन टाइप ऑफ encyclopedia और अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज. Okay. The next type is Vishwakosh. Now, this is an encyclopedia that holds detailed information. Alright. अभी डिक्शनरीज कैसे सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग्स और एटमोलॉजी को होल्ड करते हैं, विश्वकोश जो होता है वो सारा का सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है. सॉरी अबाउट दैट अगेन. Some of them hold any and all information available in the world. कुछ विश्वकोश जो होते हैं या कुछ encyclopedias ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया का जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ डालने की कोशिश किया जाता है. ऑलराइट. एंड some of them only give detailed information about one topic. For example, Britannica Encyclopedia, Maharashtra Jnankosh, etc. Alright. Britannica Encyclopedia is one such encyclopedia which has information about anything and everything that you want to know in the world. And महाराष्ट्र ज्ञान कोश क्या है कि महाराष्ट्र के बारे में जितना भी ज्ञान है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा का सारा इस encyclopedia में तुम्हें मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो स्टूडेंट्स. यहाँ पे लिखा है समाज शास्त्र विश्वकोश. ऑलराइट. समाज शास्त्र विश्वकोश का मतलब क्या है कि समाज को लेकर जितना भी इंफॉर्मेशन है, सोसाइटी यानी सोशियोलॉजी को लेकर जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस बुक में तुम्हें मिलेगा. ऑलराइट. सो दैट्स the second type of encyclopedia. Students, you may now pause the video, write down all this information first about these two types of encyclopedias and then move ahead to the next part. Alright. Now, the next two types of encyclopedias are कोशदृश. कोशदृश का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का दृश्य. कोश यानी टॉपिक एंड दृश्य का मतलब है किसी एक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन या व्यू मिलना उसका. ऑलराइट. सो इट प्रोवाइड्स आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इन लाइफ. इस टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ये क्या करते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन या आर्टिकल्स हमें देती है. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जीवन, शहर पुणे, योर बुक, एक्सेट्रा. ऑलराइट. महाराष्ट्र जीवन यानी महाराष्ट्र के जीवन के ऊपर ये इंसाइक्लोपीडिया है. शहर पुणे मतलब पुणे शहर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. योर बुक मतलब एक साल के शुरुआत से अंत तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सारे बताए जाएंगे. ऑलराइट. सो दैट्स अ कोशदृश. दैट्स अ थर्ड टाइप ऑफ encyclopedia. And finally, index. An index usually occurs at the end of a book. They are alphabetical list of subjects, individual places, keywords, references. अभी इंडेक्स जो हम देखते हैं वो टेक्स्ट बुक में हमेशा हमें आगे की तरफ मिलते हैं and we get a list of topics for the textbook, but that's not a proper index. An index जो होता है वो ज़्यादातर बुक के एंड में होता है. And what does it do? Sorry about that again, students. I'm clearly very tired. They are an alphabetical list of subjects, individual places, keywords and references. तो वो क्या है? एक alphabetical list है सारे के सारे subjects का उस बुक में. जितने भी लोग हैं उस बुक में उनके नाम सारे के सारे alphabetical order में आएंगे. Places, keywords, references. Alright? प्लेसेस, कीवर्ड यानी कौन कौन से जगह है, कीवर्ड यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रेफरेंसेस का मतलब क्या है, जो येलो में वर्ड है रेफरेंसेस का मतलब है फ्रॉम ऑल द डिफरेंट बुक्स दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन. ऑलराइट. सो दैट इज रेफरेंसेस. फॉर एग्जांपल, द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय एस.जी. डाटे. ऑलराइट. फॉर इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल क्या है, जो हर हफ्ते या हर महीने में एक मैगजीन आती है. ऑलराइट. इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स क्या है कि जितने भी मराठी पीरियोडिकल्स आए हैं किसी एक टाइम के बीच में, वो सारे के सारे पीरियोडिकल्स का अल्फाबेटिकल लिस्ट किया. अच्छा, पहले ये पीरियोडिकल आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एन इंडेक्स. एंड इंडेक्सेस हेल्प अस टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इन अ बुक इजीली. इंडेक्सेस क्या करते हैं, जस्ट लाइक इन योर टेक्स्ट बुक, अ नॉर्मल इंडेक्स जो बुक के पीछे पाया जाता है, इट हेल्प्स अस फाइंड द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली. अगर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है तो मैं पूरा बुक का पेजेस घुमाते रहूँगा क्या? नो, यू नीड एन इंडेक्स. एंड इंडेक्स विल टेल यू कि कौन से पेज नंबर पे है, कौन कौन से टॉपिक है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है. यू कैन सी दिस पिक्चर हियर. ऑलराइट. तो लेट्स से वेल्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्डिंग, यानी दो धातु को मतलब ड्रिल मशीन से, वो जो मशीन से जिससे स्पार्क्स आते हैं ना, जिससे आग होती है थोड़ा सा, और उससे मेटल को जोड़ना होता है, दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग. अगर मुझे वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है
देन आई विल सर्च इन द इंडेक्स वेल्डिंग देखो वेल्डिंग अभी लाल बॉक्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑलराइट, उसमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, एसिटिलीन, हीलियम, स्कल्पचर, वेल्डिंग रॉड क्या होता है, ये सारा का सारा चीज अभी मुझे इंडेक्स में पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है 189 पेज पे विथ पिक्चर्स, 176 पे हीलियम का है, 189 पे फिर से वेल्डिंग के बारे में बताया गया है, ऑलराइट, एंड this is how an index works, and this is the fourth type of encyclopedia. With that, we have reached the end of our explanation, students. This is the question I want you to answer for today. Very simple. Draw the diagram properly and neatly, and then fill in what are the different types of encyclopedias. Okay. Thank you for learning, students. We have reached the end of our topic for today. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note. You can send me a message, and I will try answering your doubts. All right. Have a nice day, all of you.